Now next is 21st question of the first paper. So this is if x cube plus x square minus 2x minus 3 is equal to x minus 2 into x square plus ax plus b plus 5, find a and b. So here if you see, it is a dividend here. So dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. So what we do to find the value of a and b, we will divide this dividend by this divisor x minus 2. Then we can check the what is the quotient coming and then we can compare a and b there. ठीक है, तो हम सबसे पहले इस डिविडेंड को इस डिवाइजर से डिवाइड करेंगे. सो आई हैव रिटन हियर. सो लेट्स सी x मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर टू गेट x क्यूब. सो x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, x स्क्वायर इंटू x इज x क्यूब. ठीक है, सो x स्क्वायर इंटू माइनस 2 इज माइनस 2x स्क्वायर. So it will come below the like term only. Sign change, minus plus. So it becomes 3x square, right? So bring down rest all as it is. So x into x को कितने से multiply करेंगे 3x square बन जाए. So that is a 3x only. So plus 3x. So 3x into x is 3x square. So 3x into minus 2 is minus 6x. So देखिए sign change. So now it is 6x minus 2x is 4x minus 3. So x को कितने से मल्टीप्लाई करें 4x बन जाए, that is 4 plus 4 rather. So 4 into x is 4x, 4 into minus 2 is minus 8. So sign change, minus and plus. So it is plus 5. So देखिए remainder is 5 only. So you can compare the this quotient, right? So in place of a it is 3, see here. In place of b is 4. So a is 3, b is 4. Answer. So A is 3, B is 4. So D option is correct here. So the next question is 22nd. If triangle ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC, that is 13 centimeter. Okay. So length of altitude from A on BC is 5 centimeter. Then what is BC? So see here, this is isosceles triangle, ABC sides. So these are AB and AC, that is 13 centimeter and 13 centimeter. Length of altitude is on BC from A to BC is 5 centimeter. ठीक है, so we need to find out the length of the BC. So सबसे पहले आपको ये पता है कि जो altitude है आइसोसेलेस ट्रायंगल का वो बेस को बाइसेक्ट करता है. इट मीन्स BD एंड CD विल बी इक्वल. सो पाइथागोरस थ्योरम से हम BD निकाल लेंगे और आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम से BD क्या आएगा, ओरली हमको पता है 12 आएगा, है ना. मैं करके दिखा देता हूँ कैसे 12 आएगा. सो BD स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर दैट इज 169 माइनस AD स्क्वायर दैट इज 25. सो BD स्क्वायर बन जाएगा 144. सो BD आ जाएगा 12, राइट. अंडर रूट 144 इज 12. सो 12 आ जाएगा. तो ये 12 है तो ये भी 12 होगा बिकॉज D इज बाइसेक्टिंग द बेस, AD इज बाइसेक्टिंग द बेस. सो 24 आ जाएगा BC. सो C ऑप्शन इज करेक्ट हेयर. नाउ 23rd क्वेश्चन इज द HCF ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज. सो अगर आप हमेशा देखो कंसेक्यूटिव नंबर का HCF हमेशा 1 आता है. 3 और 4 का HCF 1 आएगा. 5 और 6 का HCF 1 आएगा. हमेशा 1 आता है, दैट यू कैन सी 1. If tan theta is root 3 then what is secant theta? तो देखिए tan theta root 3. root 3 आपको पता है tan कब होता है. We know tan 60 डिग्री पर root 3 होता है. ठीक है, so it means theta यहाँ से 60 आ गया. ठीक है, तो secant 60 की वैल्यू निकालनी है, secant 60 की. So that we can find out. So secant 60 is the reciprocal of the cos 60. तो cos 60 का तो हमें पता है its value is 1/2. तो secant 60 की 2 हो जाएगी वैल्यू, right? So B option is correct here. So 25th question, a system of linear equations is said to be consistent if it has. तो देखिए consistent तब होता है सिस्टम जब या तो एक सोल्यूशन हो या फिर many solutions हो. तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा आंसर चाहिए, one or many solutions. Okay, B option is correct here. So चलिए जी 26th क्वेश्चन पे, ट्रायंगल ABC similar to triangle DEF. So पहले यहाँ बना लें ट्रायंगल्स, तब बात करते हैं आगे. ABC and DEF are similar triangles. AB है 9.1, DE है 6.5. If the perimeter of triangle DEF is 25, then what is the perimeter of ABC? So always remember, जब दो ट्रायंगल्स सिमिलर होती हैं तो उनके जो साइड्स का रेशो होता है वो ही उनके पेरीमीटर्स का भी रेशो होता है. ठीक है, तो देखिए साइड्स का रेशो कितना है. साइड्स का रेशो है AB की साइड
ए बी ले ली मैंने, दैट इज 9.1 एंड डी ई की साइड 6.5 ले ली, इज इक्वल टू ए बी एरिया ऑफ ए बी सी ले लिया, ठीक है, ओवर एरिया ऑफ डी ई एफ 25 ले लिया। तो यहाँ से आपने देखा कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होती हैं तो उनके जो साइड्स का रेशो होता है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो, वही ट्रायंगल के एरियाज का रेशो भी होता है। सो फ्रॉम हेयर यू कैन सी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, सो ये यहाँ चला जाएगा, सो 9.1 इंटू 25 ओवर 65, तो ये डेसिमल तो कट जाएंगे क्योंकि एक एक डेसिमल प्लेस से कट जाएगी, सो 13 से जाएगा, 13 5 जा, 13 7 जा, 5 1 जा, 5 5 जा, तो ये 35 आएगा कुल मिला के, सो 35 सेंटीमीटर, अगर इफ इट इज सेंटीमीटर देन सेंटीमीटर 35, ओके, सी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ ट्रायंगल PQR, angle Q is 90 degree, so I have drawn here angle Q 90 degree, PQ is 5 centimeter, QR is 12 centimeter, right? So QS is perpendicular to PR, so QS is perpendicular here, so then QS is equal to what? We have to find out the value of QS. So हम क्या करेंगे, पहले ट्रायंगल्स को सिमिलर कर देंगे, फिर इनके रेशोज साइड्स के रेशो इक्वल ले लेंगे CPST से, ठीक है। सो चलिए ट्रायंगल्स को सिमिलर करते हैं। Suppose this I'm taking big triangle and this small triangle, है ना। देखिए I'm taking the small triangle as RSQ, right? RSQ means कॉमन एंगल से 90 की तरफ मैंने नाम लिख दिया। तो बड़ी ट्रायंगल का नाम क्या आएगा, कॉमन एंगल से 90 की तरफ, तो RQP आ जाएगा, सिमिलर टू RPQ। हाउ, सी हियर, दोनों का RR एंगल कॉमन है, ठीक है। बड़ी ट्रायंगल का ये 90 है, छोटी ट्रायंगल का ये 90 है, सो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी बाय AA। सो नाउ वी विल टेक द रेशियो ऑफ द साइड्स। तो चलिए पहले हम लेते हैं SQ जो कि हमें चाहिए, SQ इसका साइड, इसकी PQ आ जाएगी। नाउ इसकी साइड हम RQ ले लेते हैं, ठीक है, तो इसकी साइड अगेन RQ आएगी, एम आई राइट, विद RQ, why these are same? So let me see, have we done some any mistake? Sorry, this name will be RQP, not RPQ, RQP आएगा, है ना, क्योंकि कॉमन से 90 की तरफ जा रहे हो आप, राइट। सो RQP। अब देखिए इसका SQ तो उसका QP, दैट इज फाइन, एंड इसका अगर मैं RQ लूँ तो इसका RP आएगा, राइट, RP। सो RP हमारे पास नहीं है, तो वी कैन फाइंड आउट RP बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये 12 है, ये 5 है, तो पाइथागोरस लगाओगे तो ये 13 आएगा RP, ठीक है, तो ये 13 आ जाएगा। तो भर दो वैल्यूज, SQ इज टू बी फाइंड आउट, PQ इज 5, RQ इज 12, RP इज 13। सो SQ विल बी 5 विल बी क्रॉस मल्टीप्लाई 5 इंटू 12 ओवर 13, सो 60 ओवर 13 आ जाएगा आंसर। सो देखते हैं कौन सा आंसर सही है, 60 over 13. So first A option is correct here. So next question is, if a line segment joining the points 3,4 and 1,2 is trisected by P and Q, then A and B की वैल्यू निकालनी है। तो ये देखिए ये लाइन सेगमेंट है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके बना है। Now the 28th question is, if the line segment joining the points 3,-4 and 1,2 is trisected at the points P, A, -2 and Q 5 over 3, B, then what is A and B? ठीक है, so I have drawn this figure, A is this, B is this, so इन दोनों को ज्वाइन करके AB बना है। P और Q इस AB को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट मीन्स 3 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। इट मीन्स AP इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू QB। सो इस क्वेश्चन को हम करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूले से। मिड पॉइंट का मतलब है, अगर हमारे पास A कोई पॉइंट है x1 y1 और B कोई पॉइंट है x2 y2, तो इन दोनों और इन AB का जो हमारा मिड पॉइंट है वो फाइंड कैसे करते हैं। तो हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला है, दैट इज x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, फर्स्ट पॉइंट इज दिस, एंड y कोऑर्डिनेट्स इज y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। तो ऐसे ही हम करेंगे, बिकॉज दीज पार्ट्स आर इक्वल, सो AQ को P जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, क्योंकि P इसके मिड में है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दें, तो इट इज 3,5 over 3 plus 5 over 3 divide by 2 is equal to midpoint of these is A. So from here this 2 will go here, so and in calcium ले लो 3 LCM, तो 3 is 9 plus 5 and this 2 will go here 2A, so 14
over 3 is equal to 2a, so a will be 14 over 3 and this 2 will go here, come here down, so it is 6. So 2 ones are 2, 7s are, so 7 over 3 is a is 7 over 3. अब b की वैल्यू फाइंड करें, so -4 plus b divided by 2 is -2 this, so it is -4 plus b is equal to -4 multiply करके, so b is equal to -4 plus 4, that is 0. So b is 0 and a is 7 over 3. So here b option is correct. So 29th question, cos square 30 plus into cos square 45 plus 4 secant square 60 plus half cos square 90 minus 2 tan square 60 is what? So इनकी values हम fill करें. So cos 60 will be under root 3 by 2, that's whole square, into cos 45 is 1 by under root 2 whole square आ जाएगा, plus 4 into so secant 60 का square. So secant 60 is cos 60 का reciprocal, cos 60 जो होता है 1 by 2, तो secant 60 is 2, plus half into cos 90 square है ना, cos 90 square. So cos 90 is 0, right? So it is 0. So minus 2 into tan 60 square. So tan 60 is under root 3. So let's solve these all. So it becomes root 3 square is 3, 3 by 4 into 1 by 2 plus 2 square 4, 4 is a 16 plus 0, no need to write here 0. So minus root 3 का square is 3, 3 to the 6 आ जाएगा, ठीक है. So यहाँ कटिंग है नहीं, चलो ठीक है, 3 over 8 आ गया and plus it is 16 minus 6 is 10. So 8 is LCM, so 3 plus 10 8 is 80, so 83 over 8. So C option is correct here. So the 30th question and the last MCQ, and it is, if 1 0 of the quadratic polynomial kx square plus 3x plus k is 2, then find the value of k. So देखिए अगर 1 0 is 2, तो it means अगर हम x की जगह 2 भरें यहाँ पर, तो full answer will be 0, ठीक है. तो 0 of a polynomial is that thing, if we fill the value of x that, so we get the value of full polynomial as 0, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पर 2 भर देंगे. सो बन गया k x स्क्वायर, देखिए k x स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 आ जाएगा. सो मैंने जहाँ जहाँ भी आपका x आया मैंने 2 भर दिया, इज इक्वल टू 0. सो ये बन गया 4k प्लस 6 प्लस k इज इक्वल टू 0. सो बन गया 5k और 6 को उधर ले जाओ -6, तो k is -6 over 5. So B option is correct here. So these are the MCQ. Now next questions are assertions and reason. ठीक है. So assertion and reason is first time introduced in the maths subject. So what are these? So assertion means we are given a fact and reason means उसका reason है कि ये इसलिए होते ये चीज़. So एक fact दिया होगा और उसका reason दिया होगा. So we want to tell that which is correct here. ठीक है. Like we have like if I am speaking 2 is a prime number because it has only 2 factors. So 2 is a prime number, that is a fact. Because के बाद जो आया, because it has 2 factors, so ये इसका reason हो गया. So assertion is fact and reason is that जो उसका reason है. ठीक है. तो देखते हैं इन questions में क्या है. For question number 31 to 35, 2 statements are given, one labeled assertion A and the other labeled reason R. Select the correct answer to these questions from the code ABCD as given below. So चलिए जी शुरू करते हैं. 31st question is assertion क्या है? If A and B are two independent event, then it is given that P of A is 2 by 5 and P of B means probability of A is 2 by 5, probability of B is 3 by 5, then probability of A intersection B. A intersection means A and B, okay, and intersection means common thing, ठीक है. तो always remember that A intersection B when A, B are independent event is P of A into P of B. That you will study otherwise in +1 standard. So here you can remember. So यही इसका रीजन सही है, ठीक है. क्योंकि देखो इन्होंने ये मल्टीप्लाई करा है इन दोनों को, 3 2 6, 5 5 25, 6 25. सो इट मीन्स P प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, तभी तो ये 6/25 आया. तो इट इज करेक्ट. इट मीन्स असर्शन का रीजन बिल्कुल करेक्ट है.
तो हेयर इट इज आस्क्ड दैट ABCD में हमने पढ़ी नहीं अभी, ABCD क्या है, बोलते हैं ए में है, अगर ए आंसर देना है आपने तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट है ना। अगर असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट बट रीजन इज नॉट करेक्ट द एक्सप्लेनेशन, अगर असर्शन और रीजन दोनों ही सही हैं बट वो रीजन जो है वो एक्चुअली इज नॉट द रीजन फॉर दिस असर्शन, तो बी ऑप्शन देना है आपने, ठीक है। एंड सी के लिए हमने कब देना है ये आंसर, असर्शन इज करेक्ट, तब जो आपका फैक्ट है वो करेक्ट है बट रीजन इज रॉन्ग, पर वो उसका जो रीजन दिया है वो रॉन्ग रीजन दिया है, तो हमने सी ऑप्शन करेक्ट करना है। और डी के लिए अगर असर्शन इज रॉन्ग, जो फैक्ट है वो ही रॉन्ग है बट रीजन करेक्ट है, कोई रीजन दे रहा है तो वो सही चीज है, तो हमें डी ऑप्शन करेक्ट करना है। और ए में ये था कि असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट हैं और जो रीजन दिया है वो बिल्कुल सही रीजन दिया उस चीज के लिए, ठीक है। तो जैसे कि हमारे ए 31 में जो असर्शन है दैट इज ऑल्सो राइट एंड रीजन ऑफ इट इज ऑल्सो राइट, सो इट मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट फॉर 31, ठीक है। अब 32 देखते हैं। असर्शन क्या है, n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाय 2 फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर, तो चेक कर लेते हैं हर पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए 2 से स्टार्ट कर लेते हैं, 2 भरो यहाँ पे n को, 2 स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 2, तो 2 से डिवाइड हो रहा है। 3 भर लेते हैं, 3 स्क्वायर 9 माइनस 3 6, हाँ हो रहा है। 4 स्क्वायर 16, 16 माइनस 4 कितना आ गया, 16 माइनस 4 12, सो 12 आता है 2 के टेबल में, ये आता है, तो मीन्स ये फैक्ट तो सही है, बिल्कुल असर्शन इज फैक्ट, असर्शन इज राइट। रीजन क्या है, √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, तो ये तो गलत है, √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, तो ये रीजन इज रॉन्ग है एंड रीजन इसका भी रीजन ये नहीं है ना, रीजन तो रॉन्ग है यहाँ पे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, नहीं, असर्शन इज करेक्ट स्टेटमेंट बट रीजन इज रॉन्ग, तो सी ऑप्शन आएगा यहाँ पे। असर्शन तो बिल्कुल सही है बट रीजन बिल्कुल गलत है, √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, अच्छा सॉरी √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, आई एम सॉरी, इट इज टोटली करेक्ट बट इसका रीजन नहीं है ये, ठीक है। तो मीन्स असर्शन इज करेक्ट राइट, रीजन इज ऑल्सो करेक्ट बट रीजन इज नॉट द आंसर ऑफ दिस असर्शन। तो ये देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, असर्शन इज करेक्ट स्टेटमेंट बट रीजन इज रॉन्ग स्टेटमेंट, नहीं दो ऐसा नहीं है, असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, हाँ दोनों करेक्ट हैं बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन, यस रीजन इसका नहीं है ये, तो हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, शुड एक्सप्लेन अगेन। सो देखिए हमने देखा कि ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और ये भी सही स्टेटमेंट है पर इसकी ये स्टेटमेंट नहीं है, इसका रीजन नहीं है ये, तो इट मीन्स दोनों ही सही हैं बट जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की, तो बी ऑप्शन। तो थर्ड देखते हैं 33rd, इफ cos a प्लस cos स्क्वायर a इज 1 देन sin स्क्वायर a प्लस sin पावर 4a इज व्हाट, तो ये भी 1 नहीं आता, मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। तो असर्शन रॉन्ग है भाई, ठीक है, मैं आपको चेक करके बताता हूं वाई असर्शन इज रॉन्ग। ये देखिए अगर cos a प्लस cos स्क्वायर a इज 1, तो यहां से cos a इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ 1 माइनस cos स्क्वायर a, सो इट मीन्स cos a इज 1 माइनस cos स्क्वायर होता है sin स्क्वायर है, तो cos a इज sin स्क्वायर है, तो देखिए cos a इज sin स्क्वायर है, तो ये cos a आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि sin स्क्वायर a के बराबर है और ये cos स्क्वायर a आ जाएगा, तो cos a प्लस cos स्क्वायर a तो 1 दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो 2 है, तो असर्शन इज रॉन्ग। लिखते हैं ये क्या है, 1 माइनस sin स्क्वायर a इज cos स्क्वायर a, तो ये तो बिल्कुल सही बोला है ना, 1 माइनस sin स्क्वायर इज cos स्क्वायर a, तो मतलब असर्शन इज रॉन्ग, assertion is wrong but reason is correct, this is fine, ठीक है। सो हमारा ये डी ऑप्शन आएगा इसका। तो 34th देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर व्हेन अ डाइस इज थ्रोन वंस इज 2/3। देखो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी डाइस में कितनी होती है, 1/2 होती है, बिकॉज देयर आर 3 प्राइम नंबर्स 2 3 5 और टोटल नंबर आर 6, तो 3/6 दैट इज 1/2 आनी थी, तो असर्शन इज रॉन्ग। प्राइम नंबर्स ऑन अ डाई आर 2 3 5, तो ये तो बिल्कुल सही है, प्राइम नंबर्स ऑन अ डाई आर 2 3 5, बट ये गलत है, ठीक है। सो असर्शन हेयर ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है, बट रीजन इज करेक्ट, असर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज करेक्ट स्टेटमेंट, तो डी आएगा जी यहाँ पे, ठीक है। एम आई राइट विद डी, रीजन इज राइट, असर्शन इज रॉन्ग, रीजन इज राइट, assertion is wrong but reason is correct, तो ये ऑप्शन आ रहा है सही, ठीक है। ओके, सो 33rd में भी यही था ना, नहीं इसमें assertion wrong थी, reason correct था, तो ये भी यही है,
असर्शन रॉन्ग थी, रीजन करेक्ट था, ठीक है। ओके जी, 5th क्वेश्चन, सॉरी। x प्लस 4 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस के वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हैज़ नो सोल्यूशन इफ k इज 2। तो k2 भर के देखते हैं, k2 भर दो। तो x आई राइट हेयर, हम भरेंगे k को 2, फिर देखते हैं क्या आंसर आता है। k को 2 भर देते हैं, तो x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस k को 2 भर दिया, 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। नो सोल्यूशन के लिए क्या होता है, x1 ओवर x2 इज इक्वल टू y1 ओवर y2 डज नॉट इक्वल टू, सॉरी, a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2 आना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल सही है, ये दोनों इक्वल है, ये नॉट इक्वल है, तो ये तो असर्शन इज करेक्ट। रीजन देखते हैं, बोलते हैं a1 ओवर a2 डज नॉट इक्वल टू k1 ओवर k2, इट इज रॉन्ग, रीजन इज रॉन्ग हेयर, असर्शन इज करेक्ट हेयर। सो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग, तो C will be. Now the next are the case study based questions and these are from 36 to 40 number questions. So Cartesian plane, using Cartesian coordinates we mark a point on a graph by how far along and how far up it is. So left right, which is horizontal direction, is called x-axis, and the up down, that is vertical direction, is called y-axis. Based on these facts, a case study is provided below. Read the information and answer the questions that follows. A team of archaeologists is studying the ruins of Lignite, a small mining town from the 1800s. They plot points on a coordinate plane to show exactly where each artifact is found. So they are using this coordinate plane as a map of selection of the town. It shows the location of a medicine bottle M. So here it is medicine bottle M. So its coordinates are 1, 2, 2 comma minus 1. I have written here. So and doorknob D, and its coordinates are minus 3 comma minus 1, and a pottery jug and its coordinates are 2 comma 4, right? So notice that each unit on the grid is equal to 5 meters. So हर unit जो है वो 5 मीटर की distance show कर रहा है, ठीक है। First question is how far apart are the doorknob and the medicine bottle? So doorknob और medicine bottle के बीच की distance find करनी है, तो this can be done with the help of distance formula also, or you can count the distances like this way also. See here 1 unit, यहाँ से चलना है ना, हमने यहाँ तक जाना है, 1 unit 2 3 4 5 units. तो 5 units means 1 unit is 5 meter, तो 5 units are 25 meter is the answer, ठीक है। तो second is how far apart are the medicine bottle and the pottery jug? So medicine bottle is here, pottery jug is here. So distance कितनी है इनके बीच, काउंट कर सकते हो। देखो 1 unit below the x-axis and 4 unit above the x-axis, तो 4 plus 1 5 unit distance आ जाएगी, काउंट कर सकते हो आप। So 5 units means again 25 मीटर आ जाएगा आंसर, ठीक है, C ऑप्शन। How far apart are the doorknob and the pottery jug? So we have to find the distance between doorknob and pottery jug. So doorknob के coordinates हैं -3, -1 and jug के हैं 2, 4. तो इनके बीच की जब हम distance find करेंगे तो हम लगाएंगे distance formula now. So D is -3, -1 and J is 2, 4. So we have distance formula, that is under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, ये फॉर्मूला है, तो आप लगा सकते हो यहाँ पर। So this is x2 is this is x1 y1, this is x2 y2. So x2 minus x1, 2 minus minus 3, that is 2 plus 3 का square, plus 4 minus minus 1, that is 4 plus 1 का square. So it becomes here now 5 square 25 plus here also 5 square 25. So ये बन जाएगा under root 50, that is 2 into 5 into 5, है ना, तो ये 5 बाहर आ जाएगा। So it will become here 5 root 2, है ना, ये 5 बाहर आ गया तो 5 root 2 बन गया। So यहाँ पे root 2 की वैल्यू भी भर सकते हैं हम, 2.414 आप इसकी, सॉरी 1.4, सॉरी, and this value we can fill 1.214, ठीक है। तो ये वैल्यू आप भर सकते हो। सो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6.070, ठीक है। सो ये हमारा आंसर आ जाएगा। सो देखते हैं कोई ऑप्शन सही है इनमें, और
Okay, 6.07. Yes, this is the correct option here. So the next question is our 39th question. We are now the coordinates of the jug and medicine bottle. So हमने ये पहले ही फाइंड करे हैं. जग के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 2,4 एंड मेडिसिन बॉटल के हैं 2,-1. So 2,4 and 2,-1. A option is correct here. So the last is the location of the doorknob. So location of the doorknob is -3, -1. So A option is correct here. So dear students, this way we have finished this first test paper, first sample paper from the CBSE side. So for other papers also we will be making these videos. So subscribe the channel and give support to these videos. Thank you so much. God bless you.